الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. All praise due to Allah, the Most Merciful. Respected dignitaries, honored teachers, esteemed doctors from As-Salam Hospital, Noor Hospital and Ahmad Gharib Unani Medical College, and my dear students, a very warm and heartfelt welcome to all of you to be present here. I'm very thankful and grateful first to Allah subhanahu wa ta'ala for providing us this wonderful opportunity to be here to share this stage and grand auditorium. And I'm very thankful to Jamia Islamia Sha'atul Ulum Al-Kua for organizing this wonderful workshop. Before start our program, I would like to call some of our guests. I request them to come up the stage and grace the stage. I request Dr. Sohail Noorani sir, Assistant Professor, Noor Hospital. I request him, sir, please come up the stage and grace the stage. I request Dr. Guneet Singh sir, Dermatologist, Noor Hospital. Please, sir, come here. Dr. Masood sir, Principal of Ahmad Gharib Unani Medical College. I request him, sir, to please come up the stage. I request Hazrat Maulana Fazil Sahab, Admin Noor Hospital. I request him to please come up the stage. The next guest, I request him, Dr. Umar Saudagar sir, Noor Hospital. I request him, please come here up the stage. I request Dr. Sayyid Azim sir, Noor Hospital, to come up and grace the stage. Thanks to you all for being here. Respected dignitaries, respected President, all our teachers, especially our guests and doctors, we are grateful and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and we are here to visit vital workshop on first aid and basic life support training. Before inviting Hazrat Maulana Qari Jabir Sahab, I would like to request Janab Akhlaq sir, please come here up the stage and grace the stage. Then for starting this program for recitation, this Quran al-Kareem, to officially commence our program and seek the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, I would like to invite the teacher of Jamia Islamia Sha'atul Ulum Al-Kua, Hazrat Maulana Qari Jabir Sahab. I request him, please come here and start recitation of Quran al-Kareem. I request Hazrat Maulana Abdul Rahman Sahab al-Madani, so please come here up the stage and grace the stage, Hazrat. Jazakumullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من
مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Jazakumullahu khairan wa ahsan al-jaza. And I'm very thankful, Hazrat Qari Jabir Sahab, for that beautiful and heart-soothing recitation. After that, I would request you all to praise Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with durood. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Respected guests, doctors, and dear students, as you all know, we are here for a first aid and basic life support training program. But today, as we gather under the banner of Jamia Islamia Isha'atul Ulum Kalkua, for us, it's impossible to step forward without looking back at our roots. We are standing on the ground of a grand vision that was planted as a seed, as a tree in 1979 by our founder, Hazrat Maulana Ghulam Muhammad Sahab Wastanvi rahimahullahu ta'ala. And let me know you all, Hazrat Maulana was not just a founder, he was a visionary, he was a reformer and a beacon of hope for all the Muslim and all the respected communities. He realized in 1979, 1980s, 1919, a decade, 2 decades, 3 decades ago, that the empowerment of our people lies in a beautiful between modern education and moral education. As you can see, Dini Ta'aleem and Asri Ta'aleem, 4 decades ago, from schools and Islamic seminaries to medical colleges, hospitals. You can see and observe here in Jamia campus, many colleges and hospitals are there. Thousands of people are here and having job and seeking job just because of Hazrat vision. From schools and seminaries to medical colleges and hospitals like As-Salam Hospital, Noor Hospital, and many colleges, his legacy is visible in every brick of this grand institution and university, inshallah. In this workshop, as you can see on the stage or on the chairs, where modern medical professionals are sitting with alongside esteemed religious scholars and ulama. For what? To teach us how to save human lives. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, "Man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Today's workshop is the living, breathing manifestation
of Hazrat Maulana Ghulam Muhammad Sahab Wastanvi Rahimahullah's profound vision. So I'm not taking longer this program. I'm moving forward towards our another felicitation program. We are deeply honored by the presence of our distinguished guest today. And it's our proud tradition of Jamia Islamia Shaatul Ummah Kalkua to welcome and to felicitate our guests. So for that, I would like to request some of our guests to felicitate each and everyone. First, I invite and humbly request Akhlaq Sir, Office Superintendent, Ahmad Gharib Unani Medical College, to kindly forward and felicitate and honor our respected President, Hazrat Maulana Huzaifa Sahab Wastanvi, Damat Barakatuhum. Next, I invite Hazrat Maulana Huzaifa Sahab Wastanvi to welcome and felicitate Dr. Sohail Noorani Sir, Assistant Professor, Noor Hospital. Moving ahead, I would now invite Dr. Muzaffar Sir, Academic in Charge, Ahmad Gharib Unani Medical College, to felicitate Dr. Guneet Singh Sir, Dermatologist, Noor Hospital. Thank you. Next, I request Firoz Sir, Admin As-Salam Hospital. I request him to felicitate and present a floral welcome to Dr. Masood Sir, Principal of Ahmad Gharib Unani Medical College. Thank you. I respectfully invite Dr. Arif Sir, Deputy Superintendent As-Salam Hospital, to felicitate and grace Maulana Fazil Sahab, Admin Noor Hospital, Badnapur. May I call upon Dr. Farooq Sir, As-Salam Hospital, to extend a warm welcome and felicitate Dr. Umar Sodagar Sir, Noor Hospital. Finally, I request Dr. Anwar Sir, As-Salam Hospital, to present flowers and felicitate Dr. Sayyid Azim Sir, Noor Hospital. Then I request Dr. Muzaffar Sir, Academic in Charge of AGUMC, to felicitate and welcome Hazrat Maulana Abdur Rahman Sahab Al-Madani. Thanks to you all for being here, for accepting this, our honor. Then it's time to move forward our actual and special program that for what we are here, means first aid and basic life support training. With the formal welcomes concluded, it's time to move forward to the core objective of our gathering today. We are here to learn life-saving skills, to shed light on the critical importance of first aid and CPR, and to explain why every individual should be equipped with this knowledge to handle medical emergencies. We have a highly qualified expert among us. I would like to invite Dr. Muzaffar Sir, the academic in charge of AGUMC, to the stage. Sir, we look forward to your valuable insights on this crucial subject. नहमदु व नुसल्ली अला करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद. Respected Hazrat Maulana Huzaifa Wastanvi Sahab, President Jamia Islamia Ishatul Ulum, dignitaries on the dais of the dais, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक सवाल इस मजमे से करना चाहता हूं कि अचानक इस वक्त हमारे सामने एक शख्स बेहोश हो जाए तो हम क्या करेंगे. तो उसका आसान जवाब भी मैं ही बता देता हूं. सबसे पहले हम हुजूम जमा करेंगे और उसमें से कुछ लोग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे. ये आज का पस मंज़र है. इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है और इसकी बेसिक वजह यह है कि हर इंसान ने ये ठान के रखा है कि मेडिकल एड या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स का है. हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है. इसी सोच को दूर करने के लिए मैं सलाम करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट मौलाना हुज़ैफ़ा दामत बरकातुहुम साहब का
कि उनकी सोच को सलाम है कि वो काम जो दुनिया के वेल डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो काम हो रहा है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने स्टूडेंट्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड फर्स्ट एड की फैसिलिटी को किस तरह से अवेल करना है और किस तरह से एक इमरजेंसी का पार्ट बनना है, वो सिखाते हैं। और मेरे ख्याल से गालिबन हिंदुस्तान की सरजमीन पर मदारिस की दुनिया में ये पहला मदरसा होगा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर असातिज़ा इकराम और तलबा मदारिस को भी ये ट्रेनिंग देने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। एक आम नज़रिया ये है लोगों का कि फ़र्स्ट एड यानी कि मरहम पट्टी करना बस यहीं तक रुक जाता है, लेकिन मैं उसके थोड़ा पस मंज़र एक वाक़या आपको के सामने रखना चाहता हूँ कि एक पुरहुजूम बाज़ार में एक रास्ते पर लोग मसरूफ़ है अपने अपने कामों में, वहीं अचानक एक शख्स अपने दिल पर हाथ रखता है, थोड़ी देर के बाद लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। फौरी तौर पर जैसे कि हमारे यहाँ का रिवाज है, एक बड़ी भीड़ अतराफ में जमा हो जाती है। कुछ लोग पानी वगैरह लाने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ पानी लाते हैं, कुछ एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए सिर्फ हंगामा करते हैं और कुछ हम में से वीडियो बनाने का काम, जो हमारा सबसे अच्छा आसान काम है, वो शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान उन्हीं भीड़ में से एक शख्स पूरे एतमाद तरीके से आगे आता है। वो उस गिरे हुए शख्स को, ज़मीन पर गिरे हुए शख्स की सांस को टटोलता है, उसकी नब्ज़ को देखता है और फ़ौरन इमरजेंसी सर्विस को फ़ोन करता है। और सबसे प्राइमरी स्टेज में सीपीआर। अब सीपीआर क्या होता है ये आपको ट्रेनिंग में हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारे दिन भर का प्रोग्राम का मेन कड़ी इसी तरह की है। अब फ़र्क क्या हुआ, ये दो स्टेज है, एक है कि हुजूम जमा हुआ और दूसरा है कि उनमें से एक शख्स पूरा एतमाद तरीके से आगे आया और उसने कुछ मेडिकल एड के लिए फ़ोन किया, प्लस वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एम्बुलेंस आती है और उस मरीज़ को ले जाती है और वो मरीज़ की जान बच जाती है। तो यहाँ फ़र्क ये हुआ कि इल्म, तरबियत, ये दो बहुत अहम चीज़ है, इल्म के साथ तरबियत। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस इल्म और तरबियत को बर वक्त इस्तेमाल करने की हमारे अंदर सलाहियत होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम को करने का मकसद और सिर्फ ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाया जाए, खुद एतमादी हमारे अंदर बढ़ जाए। हम कभी भी कोई काम कर सकते हैं जब हमने उस चीज़ का इल्म हासिल किया है और उसकी ट्रेनिंग को हमने हासिल किया है। आज का ये प्रोग्राम ऐसे ही नहीं है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 32 कि एक इंसान एक ज़िंदगी को बचाता है तो वो पूरी इंसानियत पर एहसान करता है। वहीं अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह उस बंदे की मदद उस वक्त तक करता रहता है जब वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। यानी आज के इस वर्कशॉप का हासिल यही है कि हम जो करने जा रहे हैं वो इंसानियत की फलाह व बहबूदगी के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब भी ये जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से सीपीआर देना है और वो कौन से तरीके हैं जो हम बर वक्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हादसात बोलकर नहीं आते, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर हमारे घर में दाखिल नहीं होते, लेकिन उसकी तैयारी करने का हमें हक हासिल है और हम बहुत पहले से उसकी तैयारी कर सकते हैं और उसी तैयारी की कड़ी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और मैं हजरत से फिर दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम हम वक्तन फ़ौक्तन फिर हर साल कम से कम साल में एक मरतबा ज़रूर करेंगे ताकि हमारे तमाम उलमा इकराम और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। असली और दीनी तालीम, इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान का बेहतरीन संगम आज दारुल हदीस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म दो ही है, इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान, बदन का इल्म और दीन का इल्म। तो ये दोनों संगम आज हमारे इस यहाँ पर मौजूद है और इसका मदारिस के असातिज़ा इकराम को ट्रेनिंग देने के पीछे जो हज़रत का मकसद है वो क्लियर कट है कि असली तालीम में बहुत कम वक्त बच्चे असातिज़ा के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ दीनी तालीम में बच्चों का एक बड़ा वक्त जो है असातिज़ा इकराम के साथ गुजरता है। अगर असातिज़ा इकराम हमारे इस ट्रेनिंग में ट्रेन हो जाते हैं तो आने वाली इमरजेंसी में वो खुद
डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर तक पहुंचने से पहले वो सारी मदद फराहम कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। मेडिकल फील्ड में उसे गोल्डन आवर कहा जाता है कि वो जो कीमती सुनहरी वक्त होता है हमारे पास, जिसमें हम कुछ ऐसी मदद कर कर बच्चों की या मरीज़ की हम उसकी जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। सर बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपका कि आपने बहुत कीमती अल्फाज और सुनहरे अल्फाज से हमें नवाजा। और चूँकि ये प्रोग्राम एक वर्कशॉप है, हम तमाम को ये सिखाया जाएगा कि जैसा कि आपको बताया गया कि एक इमरजेंसी के वक्त में हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। लेकिन प्रोग्राम के इफ्तिताह से पहले मैं हज़रत मौलाना द प्रेसिडेंट ऑफ जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम कलकुआ, it's my profound to honor the invite the guiding light to share the guiding light of our institution. I request Hazrat Maulana Huzaifa Sahab Wastanvi, the president of Jamia Islamia Irshaadul Ulum Kalkua, up the mic, and I request him to please come here and grace the mic. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen sayyidina wa habibina wa habibi Rabbil Alameen Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hada bihadihi ila yawmiddin. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن أو مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربات يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। जामिया के तीनों शोबे के असातिज़े किराम को इस वक्त यहाँ पर जमा किया गया है और दौरे हदीस शरीफ के तलबा भी, इनको मस्जिद में भेजा जा रहा था। मैंने कहा इनको भी सिखाने की ज़रूरत है, तो इसलिए ये प्रोग्राम का मकसद क्या है और इस प्रोग्राम को क्यों मुनाकिद किया जा रहा है। दरअसल इंसानी मुआशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ऐसा बनाया है कि हर इंसान हर वक्त एक तो अल्लाह का मोहताज होता है और दूसरा इंसान मुख्तलिफ़ अवकात में दूसरे इंसान का भी मोहताज होता है। कभी भी इंसान को किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एजुकेशनल जो इदारे हैं उन इदारे में पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों को एक चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है वो जानना ज़रूरी है और उसे कहते हैं फर्स्ट एड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। उर्दू में इसको कहा जाता है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। क्या मतलब कि अगर सफ़र में है आदमी, घर पर बैठा हुआ है, क्लास में बैठा हुआ है, कहीं चल रहा है, अचानक कोई हादसा किसी के साथ पेश आ गया, कोई परेशानी किसी के साथ पेश आ गई, किसी को कुछ लग गया, सर फूट गया, उंगली में लग गया, पाँव में लग गया, कोई गिर गया, बेहोश हो गया, कुछ भी इस तरह का हादसा अचानक पेश आया, तो उस अचानक पेश आने वाले हादसे से उस आदमी को आप कैसे मदद करें और उसका ताउन कर कर आप किस तरीके से इब्तिदाई तौर पर आप उसके मामूली सा उसका इलाज करें और फिर उसको किस तरीके से दवाखाने तक पहुंचाएं, इसको कहा जाता है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। चूँकि हमारे सामने ये बात आई कि भाई कभी कोई तालिब इल्म गिर गया, कभी तालिब इल्म क्लास में बेहोश हो गया, तो ऐसा होता रहता है। तो हमने मुज़ाकरा किया तो मालूम हुआ कि भाई फ़र्स्ट एड जो है इसका सिखाना ये हर टीचर को सिखाना चाहिए। मैंने कहा टीचर को सिखाना चाहिए तो नेकी में देरी क्यों? तो फिर हमने राब्ता किया JIIU's इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बदनापुर जामिया का जो मेडिकल कॉलेज है, और मैंने उन लोगों से कहा कि भाई हम हमारे असरी और दीनी तालीम के तमाम असातिज़ा को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग देना चाहते हैं,
कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किस तरीके से फ़राहम करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे सब्जेक्ट है और हमारे पास है ऐसे अफराद जो इसमें आपका ताउन कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग में शरीक हो सकते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि ठीक है, यह पूरी टीम वहाँ से आएगी। माशाल्लाह रात में हमारे अन्नूर हॉस्पिटल और JIIU's इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के डॉक्टरों की टीम और वहाँ के अफराद तकरीबन 15-20 अफराद वहाँ से तशरीफ़ लाए। रात में 11-12 बजे पहुँचे लोग और फिर ये प्रोग्राम रखा गया कि भाई तालीम का भी बहुत हरज ना हो, तो असातिज़ा को तीनों शोबों के असातिज़ा को एक साथ जमा किया जाए, इसलिए कि सबको अलग अलग जमा करने में हरज लाजिम आता है। तो कहा कि भाई आधे घंटे का काम है, आधा पौन घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। लिहाजा मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए ये वक्त रखा गया कि छुट्टी से 15-20 मिनट पहले शोबे हिफ्ज़ और शोबे दीनियात के असातिज़ा आ जाए और शोबे कुतुब के असातिज़ा को भी साथ में बुला लिया जाए। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इसके जो एक्सपर्ट है, जो माहिरीन है, वो हमें बताएंगे कि अगर आपके सामने किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया तो उस वक्त आप उसकी इब्तिदाई तौर पर मदद कैसे करें, क्योंकि आदमी को मालूम नहीं होता है। कभी ऐसा होता है कि ठीक है, मौत और हयात तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। कभी ऐसा होता है कि आदमी के साथ कोई हादसा पेश आया, अगर उस वक्त उसकी सही तौर पर मदद कर दी जाए तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी बच जाए, यानी उसकी तकदीर में ऐसा ही लिखा हो कि फ़र्स्ट एड अगर उसको मिल जाए तो वो बच जाएगा, तो उसको सही मदद पहुंचा दी तो वो बच जाए। और जैसा कि कुरान में है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। तो इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया। तो आपको इसमें दिलचस्पी भी होगी, इसलिए कि जब कोई नई चीज़ होती है तो आदमी को दिलचस्पी भी होती है। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, मुख्तसर सा कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली तौर पर स्टेज पर कर कर बताई जाएगी और फिर जो मुशारिकीन जितने लोगों ने शिरकत की उनको उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि भाई इसकी फ़र्स्ट एड प्रोग्राम की ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग के अंदर में इन लोगों ने शिरकत की। लिहाजा मैं हमारे असातिज़ा किराम से और दौर हदीस शरीफ के तलबा से भी गुजारिश करूँगा कि वो पूरी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो, शुरू से लेकर आखिर तक, और जो चीज़ इसमें सिखाई जाए उसको अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें। आपको डॉक्टर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन बहरहाल हर आदमी को जैसे मुअल्लिम होना ज़रूरी है, अला कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तो ऐसे ही हर आदमी को फ़र्स्ट एड जानना भी ज़रूरी है। जैसे हर आदमी के लिए लिटरेसी ज़रूरी है कि उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, ऐसे ही हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो छोटी मोटी जो तिब्बी इमदाद है उससे वो वाकिफ़ होना चाहिए। आदमी अगर वाकिफ़ ही नहीं है तो कैसे इमदाद करेगा, लेकिन आदमी ने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, प्रैक्टिकली तौर पर उसके सामने कुछ हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है। बहरहाल असातिज़ा को ख़ास तौर पर इसलिए कि हमारे असातिज़ा अपनी क्लासों के अंदर भी बच्चों को सिखाए चीज़ें। कहा जाता है ट्रेन टू ट्रेनर, ट्रेनर को ट्रेन करो। असातिज़ा को ट्रेन करने का मतलब ये है कि हमारे ये 350 असातिज़ा ट्रेन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 9,500 बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। कि आपको ट्रेन कर रहे हैं तो आपको अपनी क्लास के अंदर में भी, इसीलिए फ़र्स्ट एड के लिए जो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लगती है उसको भी जामिया इंशाअल्लाह हॉस्टलों के अंदर में, इसी तरीके से दरसगाहों के पास फ़र्स्ट एड के जो बॉक्स वगैरह लगते हैं उसको भी लगाने का निज़ाम बनाया जा रहा है। तो आप इस तरह से सीखें कि आपको भी सिखाना है अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को, ताकि वो बच्चे भी आगे ये सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, फ़र्स्ट एड है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है कि कहीं पर तूफ़ान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर लोग परेशान है, तो ऐसे मौके पर आप किस तरीके से लोगों की मदद करें, कैसे लोगों का ताउन करें। तो ये भी एक मुस्तकिल मौजू है। आज से 1-2 साल पहले कुछ लोग आए थे, मैंने उनसे कहा भी था कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें आप, लेकिन बहरहाल वो बात रह गई। लेकिन अभी मुझे याद आई, तो इंशाअल्लाह आइंदा
जो हमारे बड़े तलबा और वगैरह होते हैं उनके लिए उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हादसात बहरहाल दुनिया में तेज़ी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब ने बताया कि भाई कहीं भी कुछ होता है तो आदमी ताउन करने के बजाय वीडियो बनाना शुरू कर देता है कि भाई मेरे मोबाइल से पहले वीडियो वायरल हो जाए। तो उसको यही चक्कर होता है कि वीडियो वायरल हो। अरे भाई सामने वाले की जान जा रही बेचारे की, वो परेशान है और आप उसी से इंटरटेन ले रहे हैं। कल ही मैं एक अरबी का मज़मून पढ़ा था तो उसमें बताया कि ये जो इंसान शॉर्ट देखता है, शॉर्ट देखने से इंसान के जहन के ऊपर क्या असर होता है। तो कहा कि शॉर्ट देखने से इंसान का जहन भी शॉर्ट हो जाता है। उसमें अरबी में लिखा था शॉर्ट देखने से इंसान का जहन भी शॉर्ट हो जाता है। क्यों? कहा कि इंसान 20-25 सेकंड देखता है किसी को हंसता हुआ, फिर 20-25 सेकंड के बाद देखता है किसी को रोता हुआ, फिर 20-25 सेकंड के बाद देखता है। तो बार बार इन चीज़ों को देखने से लोगों की मदद करने का जज्बा भी मर जाता है। कभी जहाँ नहीं रोने का वहाँ रोना शुरू कर देता है, जहाँ रोने का वहाँ नहीं रोता है, जहाँ मदद करना वहाँ मदद नहीं करता है। तो कहा कि ये शॉर्ट देखने से इंसान का जहन भी शॉर्ट हो जाता है, उसको भी बहुत जो करना है वो नहीं करता और दूसरी चीज़ें करता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बहरहाल हमको वाकिफ़ होना ज़रूरी है। मैं अब हमारे फ़र्स्ट एड प्रोग्राम के लिए आगे जो भी ज़िम्मेदार है उनसे कहूँगा कि ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करें। मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ जामिया की मेडिकल कॉलेज और अन्नूर हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान का कि उन्होंने हमारे कहने पर इस टीम को यहाँ पर भेजा है। और आप हजरात से फिर एक बार गुजारिश है कि आप पूरी तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम को दिलचस्पी के साथ समझने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। वक्त है हमारे जो डेमो प्रोग्राम है उसके लिए हमारी जो टीम नूर हॉस्पिटल एंड अस्सलाम हॉस्पिटल एंड अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज से है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि हज़रत ने बताया कि हम लोग इसको बगौर सुने और उस पर लिखने की भी कोशिश करें ताकि हमें बाद में कभी ज़रूरत हो तो वो काम आए। मौके में क्या करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले CPR किसे कहते हैं? CPR है ना, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है। 3 चीज़ें इसके अंदर में है। C कहते हैं कार्डियो, कार्डियो यानी हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, दिल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है। दूसरा है पल्मनरी, पल्मनरी जो है वो फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा वर्ड है R, रिससिटेशन, यानी उसको दोबारा से शुरू करने की कोशिश करना। यानी कभी ऐसा मौका आ गया कि हमारे सामने जो है कोई आदमी जो है वो गिर गया, जिसका जो है हार्ट भी बंद हो गया, उसके फेफड़े भी बंद हो गए, यानी जो है खून की जो है गर्दिश भी बंद हो गई और सांस लेना भी बंद हो गया। अब वैसे मौके पर क्या करना चाहिए ताकि जो है जल्द से जल्द, है ना, अल्लाह करे कि जो है उसके दिल की धड़कनें भी शुरू हो जाए और जो है वो सांस लेना भी शुरू कर दे। उस वक्त में क्या करना चाहिए, उसे कहते हैं CPR। फर्स्ट एड के अंदर में जो है सबसे अहम चीज़ जो है वो CPR का सीखना है। CPR सीखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इंतज़ार करेंगे कि कोई डॉक्टर आए या कोई मेडिकल टीम पहुँचे और फिर जो है वो आकर के जो है इस पर इलाज शुरू करे, तब तक जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। दूसरे मुल्कों में हो सकता है कि जल्दी पहुँच भी जाए, लेकिन हमारे यहाँ की जो है हालत सबको पता है ना। और किताबों के अंदर में ये लिखा है जो हम साइंस में पढ़ते हैं कि अगर जो है दिमाग को, है ना, 5 मिनट तक अगर जो है खून नहीं पहुँचा तो जो है दिमाग पूरी तरीके से जो है बंद हो जाता है। 2 मिनट पे जो है उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है और 5 मिनट तक अगर खून ना पहुँचे तो जो है दिमाग पूरी तरीके से बंद हो जाता है। उसके बाद अगरचे जो है खून की गर्दिश शुरू भी हो जाए तब भी जो है वो पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से जो है ख़त्म हो चुका होगा। इसलिए उसके लिए एक एक सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अक्सर कहते हैं CPR के अंदर में टाइम इज़ ब्रेन, कि जितना जो है जल्दी हमने जो है काम करना शुरू कर दिए उतना जो है हम जो है पेशेंट के ब्रेन को बचा सकते हैं ना। अल्लाह हमें ज़रिया बना सकता है, बहरहाल करने वाला तो अल्लाह ही है। तो ये प्रेजेंटेशन के अंदर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वर्ड बाय वर्ड इस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये जो है बहुत बोरिंग चीज़ रहती है कि मैं एक एक लाइन इसमें से पढ़ते जाऊँ, उसमें किसी का ध्यान भी नहीं रहता। तो इसमें से जो चीज़ें अहम है वो लेते जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी सबके जहनों में रहना चाहिए कि फ़र्स्ट एड देने वाला, क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर, जो फर्स्ट एड दे रहा है, हमारे सामने जो है किसी को कोई चीज़ पेश आई तो फर्स्ट एड देने वाला कैसा होना चाहिए। उसके अंदर में सबसे पहली खूबी ये होना कि वो काम होना, ठीक है। वो जो है घबराना नहीं। उसने जो है अरे भाई क्या हो गया, किसी को जो है छोटा सा जो है कट लगा, खून निकला और सामने वाला घबरा गया, अरे क्या हो गया, अरे अरे बहुत खून निकल गया। तो होगा ये कि उसकी जो है उसका जो इंजरी है, उसको जो मार लगी है वो तो बहुत छोटी है,
लेकिन आपके घबराने की वजह से और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा, उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कभी भी जो है फर्स्ट एड देने वाला ये जो है बिल्कुल इत्मीनान के साथ में जो है उसने काम करना। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस रहना ना। मिसाल के तौर पे कोई मेरे पास आया पेशेंट और मैं जो है उससे कह रहा हूँ कि मैं आपका इस तरीके से इलाज करूँ, नहीं 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 ऐसा भी कर सकता, तो वो सोचेगा भैया डॉक्टर साहब को खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके पास जाना। हाँ, तो हम जो कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली करना कि भाई हाँ इसमें ये चीज़ करना है, हम जो है सही कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी जो इत्मीनान रहेगा कि हाँ मेरा बराबर इलाज हो रहा, या ये जो मेरे साथ कर रहा है ये बराबर कर रहा। ठीक है। और जो है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ मौका पड़े वहाँ हम जो है दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आदमी ने यह भी सोचना है कि ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कि कभी जो है ये चीज़ मेरे साथ पेश आ जाए, कभी मेरे किसी करीबी के साथ पेश आ जाए, तो उस वक्त में अगर लोग यही सोचेंगे कि भाई छोड़ो देखेंगे कोई और आ जाएगा मदद करने। एक आम तौर से जो जहन बना है, हम जो है रोड से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम सोचते भैया दूसरा कोई देख लेगा। ठीक है। तो हम जो है हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार होना, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, ये होना चाहिए फर्स्ट एड देने वाले के अंदर। मकसद फर्स्ट एड देने से है ना, एक तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, सबसे यानी पेशेंट अगर उसकी अगर जान खतरे में है तो ये कि अल्लाह ताला उसकी जान बचा ले, सबसे पहला एम ये है। दूसरा ये है कि उसको और ज़्यादा उसका जो है ये मर्ज जो है या जो भी उसको तकलीफ़ हुई है ये और ज़्यादा ना बढ़े। और फिर तीसरा ये कि जो है उसको धीरे धीरे जो है वो ठीक होने लग जाए। फर्स्ट एड का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उसका इलाज कर देना, सबसे पहला ये है कि उसकी जान बचे और जिस चीज़ में है उसको कम से कम उससे निकाल देना, है ना। कोई अगर जो है आग में अगर जल रहा है उसको आग से बाहर निकाल देना, ये भी फर्स्ट एड है। भले आपने उसका इलाज नहीं किया लेकिन उसको वहाँ से बाहर निकाल लिया, उसके आगे की तकलीफ तो रोक दी है, जो चीज़ बढ़ रही थी उसको तो कम से कम रोक दिया, ये भी फर्स्ट एड है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर आ जाएंगे कि CPR कब देना रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के लेक्चर में सीखना है और ये इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ करके भी दिखाएंगे। नॉर्मली जो जो चीज़ें हमारे सामने कभी भी हो सकती है कहीं पर भी, वो कॉमन चीज़ें डिस्कस कर लेते, उसमें क्या करना। बहुत मरतबा ये हम सब ये चीज़ें करते भी हैं, लेकिन इतना ये है कि हमें या तो पता नहीं रहता कि हम सही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, या तो कभी इसके मुकाबले में कोई हमारे जो है पुरानों से कोई घरेलू इलाज चलते रहते हैं, आदमी उसको तरजीह दे देता। अक्सर घरेलू इलाज जो है वो भी जो है सही रहते हैं और वो भी साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड रहते हैं, उसके पीछे भी जो है मजबूत दलाइल रहते हैं साइंटिफिक, इतना है कि हमें पता नहीं रहता। तो घरेलू इलाज भी ऐसा नहीं है कि सब गलत रहते हैं, अक्सर उसमें से सही रहते हैं। तो सबसे पहले यह है कि अगर जो है कहीं पर किसी को कट लग जाए, खून निकलने लग जाए, ब्लेड का कट हो या ऐसी कोई चीज़ जिससे जो है आदमी को छोटा मोटा घाव हो जाए, तो उसमें क्या करना चाहिए। एक चीज़ जो इसमें लिखा है ये कि जो है हाथ को जो है या जहाँ पर भी कट लगा है उसको दिल के लेवल से ऊपर लेके चले जाए, हार्ट से ऊपर लेके चले जाए, तो ये होगा कि वहाँ से जो है खून का निकलना कम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हार्ट के लेवल के ऊपर ले गए तो खून वहाँ से जो है दिल की तरफ आएगा और यहाँ से बाहर जो है खून निकलना कम हो जाएगा। फिर दूसरा ये करे कि जहाँ से खून निकल रहा है उसको कोई साफ कपड़े से जो है उसके ऊपर प्रेशर लगाए, उसको जो है जोर लगाए, दबाए और उसको जो है थोड़ी देर जो है प्रेस करके रखे, तो इससे जो है वहाँ पे जो है खून जो है क्लॉट हो जाएगा और अब आगे निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि उसको साफ करने के लिए अच्छा कपड़ा, साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर मशहूर है कि कोई भी ऐसी सफाई का काम हो तो उसके लिए गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते। ठीक है। तो साफ कपड़ा लेना, क्योंकि गंदा कपड़ा लेने से होगा ये कि वहाँ पे इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पार्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, जिस्म का वो पार्ट खुल चुका है। अगर वहाँ पे गंदा कपड़ा लगाएंगे तो जो है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। इसलिए साफ कपड़ा लेकर के उसके ऊपर प्रेशर लगाना थोड़ी देर, तो प्रेशर लगाने से जो है वहाँ पे खून का निकलना बंद हो जाएगा। अब उसके बाद जो है उसको अच्छे तरीके से धो ले पानी से। अगर वहाँ पे साबुन वगैरह लगाएंगे तो जलन होती थोड़ी, तो खाली साफ पानी से भी धो ले तो काफ़ी है। और फिर जो है उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा दे, सादा कोई भी ऑइंटमेंट मिलता है, सोफ्रामाइसिन वगैरह जो मिलते हैं वो लगा करके उसको अच्छी तरीके से बांध दें, बस ये हो जाएगा। इतना कर दे तो काफ़ी है। बाकी अगर कोई स्टील की ब्लेड वगैरह अगर लगी थी और जो है हमने पहले टीटी नहीं लिए थे तो फिर जो है हॉस्पिटल जा करके टीटी का इंजेक्शन वगैरह लगा ले, नहीं तो जो है मामूली से घाव के लिए इतना भी कर लिया घर में काफ़ी है। ये एक चीज़ कभी कभार हो जाती है, खास करके जो लोग सर्दियों के मौसम में या फिर जो है जिनका BP बढ़ा हुआ रहा, नाक में से जो है खून निकलना शुरू होता, तो वैसे मौके पर क्या करना, नाक में से खून निकलना शुरू हो रहा, कुछ नहीं करना है, नाक को जो है ज़ोर से दबाना है, आगे की तरफ जो है झुक करके ज़ोर से जो है प्रेशर देना है। प्रेशर देने से ये होगा कि वो जो नली है जहाँ से जो है खून निकल रहा है ऑटोमेटिकली जो है उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, थोड़ी देर में जो है खून वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ये सबसे जो है आसान इलाज है। इससे अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना, उसके ऊपर में कोई ठंडी चीज़ लगाना है ना। अब ये आमतौर से लोग घरों में भी करते हैं। लॉजिक इसके पीछे की ये है कि ठंडी चीज़ लगाने से जो है जो नली रहती है खून की, वेसल्स जिसको कहते हैं, वो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो पतली हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती ठंडी के अंदर में। ठीक है। जैसे आमतौर से ठंडी के मौसम में हाथों के हाथ कैसे हो जाते हैं,
है ना, खून कम बहने की वजह से। तो ठंडी में जो है आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती है, खून कम बहता। वही लॉजिक यहाँ लगा रहे कि जो है कोई ठंडी चीज़ लगाएंगे तो वहाँ पे जो है खून कम आएगा, खून कम आएगा तो बाहर निकलना कम हो जाएगा। तो कोई भी ठंडी चीज़ बर्फ़ वगैरह को जो है कपड़े में लपेट करके उसको वहाँ पे लगाए, कोल्ड कॉम्प्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर कर सकते हैं जी। अच्छा, इसमें जो है ये फोटो के अंदर में भी दिया हुआ है कि इस तरह से जो है ना, मुंह, अपने मुंह को जो है पीछे लेकर के जो है ऐसे नाक इस तरह से नहीं दबाना। उसमें एक रिस्क रहती है कि जो है खून जो है वो अंदर की तरफ चला जाए, है ना, हलक से जो है खून अंदर की तरफ जा सकता, उसमें कभी कभार एस्पिरेट भी हो सकता है, यानी फेफड़ों के रास्ते में भी जा सकता है, इसलिए ये वाली पोजीशन नहीं लेना। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे थोड़ा थोड़ा CPR रिलेटेड है, लेकिन वो अपन वहाँ अलग से देख लेंगे इंशाल्लाह। ये है कि अगर कोई हमारे सामने बेहोश हो जाए तो क्या करना, ठीक है। अब ये जो बेहोशी है यहाँ पर जिसको सिनकोप लिखा है, सिनकोप कहते हैं कि कोई जो है थोड़े से देर के लिए बेहोश हो गया, थोड़े से देर यानी कुछ सेकंड्स के लिए पेशेंट जो है वो गिरा और फिर उसको थोड़ी देर में होश आ गया, इसको कहते हैं सिनकोप, है ना। बस गिरा और कुछ सेकंड में या 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसको वापस से होश आ गया, उसको कहते हैं सिनकोप। आमतौर से इसकी वजह जो है वो 2-3 वजह रहती है। एक तो ये है कि आपके ब्रेन को जो है थोड़ी देर के लिए खून की सप्लाई कम हो जाती, ठीक है। अब वो कभी कभार वो ऐसे पेशेंट जो BP की गोलियां लेते हैं, खास करके जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, BP की हाई पावर की गोलियां चालू है, एटेनॉल, ऐसे इस किस्म की गोलियां, ये पुराने ज़माने में बहुत चलती थी। तो वो पेशेंट जब सो करके उठते हैं या लेट करके जो है सीधे खड़े होते, तो एकदम से जो है खून वो नीचे की तरफ जाता और जो है दिमाग में जो है खून कम पहुंचता, उसकी वजह से उनको चक्कर आती, थोड़े से देर के लिए बेहोश हो जाते। एक ये आमतौर से एक ये रीज़न रहता। दूसरा रीज़न जो है वो शुगर का कम होना। अब शुगर कम होना ये नॉर्मली ऐसा आम लोगों में नहीं होता, ठीक है, भले से एक दो टाइम खाना नहीं भी खाए ना, तो ये आम लोगों में इतना शुगर कम नहीं होता। ये प्रॉब्लम किस में आती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है और जो गोलियां लेते हैं। अल्लाह ने जो है बॉडी का निज़ाम ऐसा बनाया है कि वो खुद ब खुद जो है बराबर एडजस्ट करते रहती है, लेकिन जो पेशेंट डायबिटीज़ के है वो लोग जब गोलियां खाते हैं तो वो शुगर कम करने की गोलियां रहती है। अगर उसके बाद अब ये खाना नहीं खाए तो वो लोग रिस्क पे रहते हैं कि अब जो है ये शुगर कम होने की वजह से जो है बेहोश हो सकते हैं। तो बहरहाल ये 2-3 मेन रीज़न रहते हैं। तो अब अगर ऐसा कुछ हो गया हमारे सामने, कोई पेशेंट बेहोश हो गया, तो करना तो यह है कि सबसे पहले चेक करना कि जो है उसकी नब्ज़ चालू है कि नहीं, जिसको हम पल्स कहते हैं, पल्स उसकी चल रही है कि नहीं, नब्ज़ चालू है कि नहीं। नब्ज़ कैसे देखते हैं, आमतौर से मशहूर तो यह है कि हम यहाँ पे नब्ज़ देखते हैं हाथों में, ठीक है, लेकिन बेहोश आदमी में यहाँ की नब्ज़ मिलना मुश्किल रहती है, इसलिए सबसे अच्छी जगह जो है नब्ज़ देखने की वो इधर है, गले पे, ठीक है। ये जो यहाँ की जो हड्डी रहती है बराबर इसके सीध में इस तरफ, आप लोग खुद हाथ लगाएंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे खुद महसूस हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे बेस्ट जगह है किसी भी जो है बेहोश इंसान के नब्ज़ चेक करने के लिए। अगर ये चालू है तो आप पेशेंट को CPR देने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर नहीं चल रही है तो फिर CPR देंगे, वो देखेंगे हम बाद में कैसे देते, ठीक है। तो मतलब अब पेशेंट बेहोश हुआ है, सिर्फ उसकी नब्ज़ चल रही है, सिर्फ बेहोश है, तो ये पेशेंट में जाके CPR चालू नहीं कर देना। ये भी एक लोगों में बैठा हुआ है कि कोई भी बेहोश आदमी दिखा जाके CPR शुरू कर देना, उसको दबाना शुरू कर देना, नहीं, उसको आप नुकसान कर देंगे, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, है ना। हालांकि अच्छा खासा उसकी जो है नब्ज़ भी चल रही है, सांस भी चल रही है, तो वैसे पेशेंट में CPR नहीं देते, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये पेशेंट में हो सकता है कि जो है BP की कमी की वजह से जो है इसको बेहोश हुआ हो, तो क्या करना है, एक तो जो इसके कपड़े थोड़े ढीले कर देना, ये करते भी आमतौर से, कोई बेहोश हुआ तो उसको जो है थोड़े ठंडे माहौल में ले जाते हैं, फ़ैन के नीचे ले जाते हैं, कपड़े ढीले कर देते हैं। और एक बहुत अहम चीज़ ये है कि उसके जो है पैरों को थोड़ा सा ऊपर कर देना। पैरों को ऊपर करने से जो पैरों की तरफ जो खून है वो ऑटोमेटिकली हार्ट की तरफ, दिल की तरफ जाएगा और वहाँ से जो है ब्रेन को जो है खून पहुँचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई बेहोश आदमी दिखा जिसकी नफ्स वगैरह चालू है, बराबर सांस ले रहा है, लेकिन सिर्फ बेहोश है, तो जो है उसके कपड़े ढीले कर देना और जो है उसके पैरों को जो है थोड़ा सा ऊपर उठा देना, नीचे तकिए वगैरह रख दो। ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करना। उसमें खास करके जो आदमी बेहोश है उसको कोई खाने पीने की चीज़ नहीं देना। ऐसा लगता है कि भाई चलो शुगर कम होने से जो है वो बेहोश हुआ तो अब इसको जो है कुछ खिला दो। अब वो जो पेशेंट बेहोश है, अगर वो होश में होता तो बिल्कुल उसको जो है देना चाहिए मीठा खाने को, लेकिन बेहोश आदमी में कभी भी जो है खिलाने पिलाने की कोशिश नहीं करना। क्या होगा कि जो है पेशेंट बेहोश है, उसको तो पता नहीं चल रहा, कोई चीज़ हमने उसके मुँह में डाले तो जो है इसकी रिस्क रहती है कि जो है वो उसके जो है सांस की नली में चली जाए, जिसकी वजह से जो है आगे उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। सांस की नली में अगर ब्लॉक हो तो और बहुत सारी चीज़ें हो सकती, ठीक है। तो जो है यहाँ पे फ़ायदा कम होगा और जो है नुकसान हमारे ज़रिए से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ें नहीं करना। सिर्फ इतना ही काम करना है और इतनी देर में बाकी जो है एम्बुलेंस को बुला लेना, डॉक्टर को बुला लेना और उनका जो है इंतज़ार करना, और उस बीच में चेक करते रहना कि उसकी नब्ज़ है कि नहीं, है ना। हाँ, पेशेंट बेहोश हुआ, अपने पैर ऊपर कर दिए और जो है एम्बुलेंस को बोल दिए, एम्बुलेंस आ रही है, उतने देर में जो है आपने देखे कि उसकी नब्ज़ चली गई, तो अब जो है CPR देना शुरू कर देना वहाँ पे, ठीक है। फिर इंतज़ार नहीं करना, फिर CPR देना शुरू कर देना। छोटे मोटे अगर जो है कहीं पे
जलन वगैरह है, मतलब अगर जो है मोमबत्ती वगैरह से जो है जल जाता है, ऐसी कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें हुई है तो क्या करना, बस उसको जो है पानी के अंदर में ठंडे पानी में रखना थोड़ी देर तक और फिर उसके बाद में उसको कवर कर देना। लेकिन अगर ज़्यादा गहरा अगर जो है ज़ख़म हुआ है जलने की वजह से तो फिर जो है जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बोलने जी। उसका वो सब चीज़ों के जो है मतलब साइंस में कोई उसका प्रूफ नहीं है। अक्सर चीज़ों का इलाज ये देखेंगे तो जो है साफ़ ठंडा पानी ये जो है अक्सर जगहों पे काम आ जाता है ना। छोटे मोटे कहीं घाव है, कट लगे हैं या जो है जला है तो वहाँ पे जो है ठंडे पानी के नीचे रखना, ये जो है सबसे ठंडा बोले तो बर्फ़ वाला नहीं, एकदम ठंडा पानी, ठीक है। उसमें या अगर बर्फ़ लगा रहे हैं तो उसको कोशिश करना कि फिर जो है कोई कपड़े वगैरह में लपेट करके उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन बर्न के अंदर में जहाँ पे अगर जला हुआ है तो वहाँ पे ठंडे पानी के नीचे रखना तो जो है बहुत सफिशिएंट रहता, काफ़ी अच्छा रहता वो, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं जो बर्न में लगाते हैं, नहीं भी लगाए तो उसका खाली जो है कवर कर दे। ये है स्प्रे एंड स्ट्रेन, जिसको हम कहते हैं मोच आ जाती है तो क्या करना है ना। इसको RICE करके इसका फॉर्मूला है याद रखने के लिए, राइस, ठीक है। R से जो है रेस्ट, आराम देना, जहाँ पे मोच आई है तो वो वाले पार्ट को जो है थोड़ा आराम देना, उसके ऊपर जो है आइस कंप्रेशन करना, ठीक है। आइस से कैसे करते हैं, वही कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर जो है आइस फेरना, ठीक है। कॉम्प्रेशन बैंडेज, ठीक है। कॉम्प्रेशन बैंडेज ये उस जॉइंट के आसपास में जो है कॉम्प्रेशन बैंडेज लगा देना, इलास्टिक बैंडेज जो रहती है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है एलिवेशन, यानी उस जॉइंट को जो है थोड़ा सा जो है हल्का सा एलिवेट करके रखना, ठीक है। ये घरेलू इलाज है, कोई भी कर सकता। बाकी अगर तकलीफ वगैरह ज़्यादा है तो उसमें पेन किलर और दर्द की गोलियां वगैरह ले सकते हैं, जो ओवर द काउंटर मिलती है वो भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल कोई भी जो है किसी को किसी कीड़े वगैरह ने काट दिया, ठीक है, तो देखो नॉर्मली ऐसा कीड़े वगैरह काटने से ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इतना है कि जो है पेशेंट को कभी कभार वहाँ मामूली सा दर्द होता है या जो है खुजली आना शुरू होती है। इंसेक्ट बाइट के अंदर में कीड़ों के काटने में जो सबसे मेन चीज़ रहती है वो जो है खुजली का आना है। बहुत रेयरली कभी कभार किसी को बड़ा रिएक्शन आता, लेकिन आम तौर से जो है पेशेंट को उतने एरिया में खुजली आना ये बहुत कॉमन है। और खुजली आने का जो रीज़न है वो जो है एलर्जी रहती है, ठीक है। वो जो कीड़ा काटता है उसके काटने की वजह से वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो एलर्जी की वजह से जो खुजली आती है, बस यही चीज़ है। तो जहाँ पे काटा है अगर वहाँ स्टिंग दिख रही है उसका काटा हुआ तो वो निकाल देना। और जो है अगर काटने के बाद में सूजन वगैरह आई है तो फिर वही ठंडा इलाज जो है वहाँ पे आइस वगैरह लगाना, कपड़े में लपेट करके आइस लगाना। और खुजली अगर आ रही है तो एंटी हिस्टामिनिक क्रीम, ठीक है, कोई भी आपका एंटी हिस्टामिनिक क्रीम वगैरह मिल जाते हैं दुकान पे जाओ तो, या फिर गोलियां भी ले सकते हैं, सेट्रिजिन, एविल जो है ये एंटी हिस्टामिनिक गोलियां है, ये जाओ तो मेडिकल पे ऐसी मिल जाती है, बस वो गोलियां ले तो काफ़ी रहता। हाँ, इसमें लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चेक करते रहना कि कहीं वो जो अगर वहाँ पे लाल चट्टा वगैरह कुछ आया है या ये जो खुजली वाला पार्ट है ये कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फ़ौरन जाके फिर जो है डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे फिर बड़ा रिएक्शन बन सकता। बाकी आमतौर से 99% टाइम्स तो जो है कुछ नहीं होता, सिर्फ लोकल थोड़ी सी वहाँ पे रेडनेस रहती है, थोड़ा सा स्वेलिंग होता और थोड़ी बहुत खुजली आएगी, बस आप एक आध गोली सेट्रिजिन, एविल के ले लिए तो उससे जो है इंशाल्लाह वो ख़त्म भी हो जाता। लेकिन अगर वो बढ़ते जा रहा है या फिर अगर जो है होठों के पास में अगर जो है वहाँ पे जो है फूलना शुरू हो रहा है, चेहरे पे सूजन आ रही है या फिर जो है सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो रहा है, तो ये ऐसे केसेस में जो है फ़ौरन डॉक्टर के पास चला जाना। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है अगर जिस्म पे कहीं कोई चीज़ घुस गई, ठीक है, बहुत बार होता है लकड़ी वगैरह कुछ घुस जाते हैं तो उसको निकालने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बेस्ट ये है कि जो है इस तरह के जो फोर्सेप्स रहते हैं, ट्वीज़र्स जिनको कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए। लॉजिक उसके पीछे यही है कि आप जो है जिस्म के अंदर में कोई सुई वगैरह कोई और दूसरी चीज़ डालेंगे उसको निकालने के लिए, तो वहाँ से वापस आप जो है इन्फेक्शन के और दूसरी जो है इंजरी होने के चांस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ को निकालना है बॉडी के अंदर से तो साफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉडी के अंदर में कहीं पर भी कोई चीज़ घाव वगैरह लगाए तो उसके ऊपर साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज़ है जिसमें जो बहुत कॉमन भी है और इसमें हमारे से बहुत गलतियाँ होती है, वो ये है कि अगर आँखों में कोई कचरा चला जाए तो क्या करना, ठीक है। तो आमतौर से होता ही है कि सबसे पहले हम जो है आँखों को मलना शुरू कर देते, और लिखा यह है कि जो है आँखों को मलना जो है बिल्कुल मतलब नहीं करना चाहिए। कोशिश करना, कभी कभार बहुत ज़्यादा हो रहा है तो नहीं अवॉइड कर सकते, करना ही पड़ता, लेकिन आँखों को जो है ज़्यादा मलना नहीं, उसमें क्या करना, बल्कि पहले तो कोशिश करना कि तेज़ी से जो है आँख खोल बंद करें। अल्लाह ने जो है बॉडी के अंदर खुद ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि कोई चीज़ अगर गई है बाहर की तो बॉडी उसको खुद से निकाल भी सकती है। अल्लाह ने बॉडी को बनाया है ऐसा है। तो क्या करना, अगर कोई चीज़ बाहर की गई है आँखों के अंदर तो जो है आँखों को जल्दी जल्दी खोल बंद करना,
ठीक है, उससे जो है वो चीज़ निकल सकती। नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना, पानी लेकर के जो है आंखों के ऊपर मारना। ये दो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो मैं आपको बोल रहा था ये एलर्जी के सिम्टम्स है। ठीक है, नॉर्मली भी किसी को कोई भी चीज़ से एलर्जी हो सकती, और ये हम पहले से गेस नहीं कर सकते किसको कौन सी चीज़ से एलर्जी होंगी। ठीक है, पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे यहाँ का स्टूडेंट ही था MBBS का, उसको जो है पेट में दर्द हो रहा था, तो वो उसके इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल में आया, और उसको पेट के दर्द के इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक दिया उसको उससे रिएक्शन आ गया, और वो रिएक्शन की वजह से जो है उसकी सांस की नली में ऐसा ब्लॉक बैठा कि हमको जो है पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। उसका मर्ज जो लेके आया था वो ये कि उसका पेट में दर्द हो रहा था, उसके लिए जो इलाज दिए उसकी वजह से उसको ऐसी एलर्जी हुई कि उसको जो है डायरेक्टली वेंटिलेटर पे डालना पड़ा हमको। तो एलर्जी के बारे में हम बोल नहीं सकते कि कब किसको किस चीज़ से एलर्जी हो जाए, लेकिन एलर्जी के जो लक्षण है वो पता रहना कि कौन सी चीज़ ये बता रही है कि इसका एलर्जी रिएक्शन बढ़ते जा रहा। तो मैंने आपको जो बताया स्नीजिंग, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो होते रहती है और हमको पता भी है। ज़्यादा किसी को छींके आ रही वो जाता मेडिकल पे से सेट्रिजिन लेके खुद ही खा लेता। ठीक है, इसमें तो जो है लोग बहुत माहिर हैं। लेकिन उसके आगे की जो चीज़ें हैं, आंखें लाल हो जाना, रैश, जिस्म के ऊपर चट्टे आना, खास करके ऐसे चट्टे जिसके ऊपर खुजली आती है, ये जो है एलर्जी के सिम्टम रहते हैं। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताता कि पेशेंट की एलर्जी बढ़ रही है। एक तो जो है होठों के पास में जो है होठे फूल जाना, और दूसरा चेहरों के पास, खास करके आंखों के पास, यहाँ पे जो है सूजन आना, ये एलर्जी की साइन रहती है। ठीक है, इचिंग है, और फिर धीरे धीरे जो है पेशेंट को उसके बाद में फिर सांस लेने में तकलीफ होना शुरू होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर हमारे सामने कभी खुदा ना खास्ता हो जाए, ये चीज़ अगर हमको पता हो तो अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से किसी की जान बचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने ये इस्तेमाल करके जो है सामने वाले के जो है ना, अल्लाह ताला उनके ज़रिए से जान बचाया। इसको बोलते हैं हेमलिक मैन्योर। ये इस्तेमाल होता है जब भी जो है पेशेंट को जो है चोकिंग हो। चोकिंग किसे कहते हैं कि आदमी बैठा था खाना खाने के लिए, खाने का लुकमा खाते खाते जो है ना, लुकमा अब जो है इसके सांस की नली में चला गया और इसकी सांस की नली ब्लॉक हो गई, है ना। अब सांस की नली ब्लॉक हो गई तो जाहिर सी बात है आदमी जो है सांस नहीं ले पाएगा। अब ये तो जो है एकदम इमरजेंसी कंडीशन बन गई। अब जो है डॉक्टर के आने और जो है तब तक इंतज़ार करना, ये जो है बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि जो है ये एक तरीका है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। बता देंगे भाई अजीम आके, ये आपको करके बता देगा कि जो है कैसे करना है हेमलिक मैन्योर। इसमें वैसे वीडियो में भी दिखाया हुआ है क्या करना। जो आपको पेशेंट ऐसा दिख रहा है कि जो सांस नहीं ले पा रहा, जिसकी जो है सांस की नली ब्लॉक है, तो सबसे पहले जो है उसके छाती के जो नीचे का हिस्सा है, यानी पेट का ऊपर का हिस्सा, छाती और पेट जहाँ पे मिलता, ये वाले हिस्से पे जो है आप पीछे से उसको पकड़ेंगे, ठीक है, और जोर से जो है उसको पीछे और ऊपर की तरफ झटका देंगे। बताओ कैसा करना है, ठीक है। हाँ, ऐसा होगा कि वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल आपके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो जोर से जो है झटका देना है। तो ये झटके की वजह से जो अंदर जो अटकी हुई चीज़ है वो जो है बाहर निकल के आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसको रिपीट भी करना पड़ सकता है, एक बार में नहीं हुआ तो 2-3 बार भी करना पड़ सकता है। तो ये जगह याद रखना, ये जो है जहाँ पे जो है आपका छाती और पेट, इसका जो जंक्शन है जहाँ पे मिलता है दोनों, ठीक है, पेट का एकदम ऊपर का हिस्सा, छाती के से जस्ट नीचे, वहाँ पे जो है दोनों हाथों को ऐसे सामने करके पकड़ना और फिर जो है जोर से जो है पेशेंट को ऊपर और पीछे की तरफ झटका देना, अपनी तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह जोर से जो है झटका देना पेशेंट को। इसको कहते हैं हेमलिक मैन्योर। अगर कोई छोटा बच्चा, ठीक है, उसको जो है इस तरह से अगर चोकिंग वगैरह हो जाए, और छोटे बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो लोग खेलते खेलते कोई भी चीज़ जो है मुंह में डाल देते, तो इसके जो है चांसेस रहते हैं। अब आप जो है वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इसमें जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो छोटे बच्चे के लिए क्या करना, बच्चे को जो है उल्टा लेटा करके उसके जो है पीठ के ऊपर में जो है 5 बार जो है थपके देना, ठीक है। यानी आपने जो है ये बच्चों को ऐसे लेटा है, ऊपर जो है पीछे से आगे की तरफ 5 बार ऐसे ब्लो मारना उसके ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर सीधा करके छाती के पास में प्रेस करना 5 बार, ठीक है। और ये रिपीट करना, पीछे करके 5 बार ये करेंगे, फिर सीधा करके 2 बार जो है इसको यहाँ सामने से प्रेस करना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी चोकिंग के लिए। नेक्स्ट है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग की अलग अलग किस्में हो सकती है। एक तो ये है कि किसी ने जो है पॉइजन खा पी लिया, अब वो किसी भी वजह से हो, चाहे उसको किसी ने खिलाया हो या खुद से खाया हो, हाँ, जहर, पॉइजन कहेंगे जहर को। या दूसरा ये है कि जो है किसी भी तरीके से जो है पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया। मिसाल के तौर पे कोई जो है खेती करता है, अब वो खेत में जो है वो इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड जिसको कहते हैं, ठीक है, हाँ, तो उसके अंदर में जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस रहता है, वो भी एक किस्म का पॉइजन है। तो वो जो है सांस की नली से अगर जो है आदमी ने उसकी जो है सांस भी ले लिया तो उसके ज़रिए से भी पेशेंट के बॉडी के अंदर पॉइजन जाता है। या यहाँ तक कि अगर जो है उसके जिस्म के ऊपर ज़्यादा लग जाए
तो उसके ज़रिए से भी पॉइजन अंदर एब्जॉर्ब हो जाता आपके स्किन के थ्रू। तो ऐसे सब केसेस में क्या करना, कोई अगर जो है पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया, हाँ कभी कभार जो है नॉर्मली जो गोलियां इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए उसको ज़्यादा लेना ये भी पॉइजनिंग बन जाता, ठीक है। खास करके नींद की गोलियां, किसी को अगर जो है नींद की गोलियां शुरू है, इसलिए नींद की गोली जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती, रूल तो यही है नहीं देना चाहिए, कहीं कहीं मिल जाती। तो अगर वो जो है किसी ने बहुत सारी एक साथ खा लिया तो उसकी वजह से जो है बिल्कुल नींद की गोली का काम ही होता है दिमाग को शांत करना, तो अब वो दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि जो है बिल्कुल एकदम जो है पेशेंट उसमें कोमा में भी जा सकता, ऐसे कंडीशन हो सकते। बहरहाल तो अब पॉइजनिंग का पेशेंट आया, अब इसका पूरा इलाज करना है तो जो है उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ले जाना ही है, आपको एम्बुलेंस बुलाना है जल्द से जल्द, वो सारे काम तो करना ही है। पॉइजनिंग का पेशेंट भी अगर आपको ऐसी कंडीशन में मिला कि उसके नफ्स नहीं चल रही है तो अब सारी चीज़ें छोड़ना और सीपीआर शुरू करना, ठीक है। सीपीआर के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, नफ्स कोई पेशेंट की नहीं चल रही है तो सीपीआर ही देना है, कोई दूसरा इलाज करना ही नहीं है। हाँ ये सारी सब चीज़ें कब है, जब पेशेंट स्टेबल है, उसकी नफ्स वगैरह बराबर चल रही है तब के लिए। तो पॉइजनिंग के बारे में एक चीज़ याद रखना, अगर पेशेंट ने कोई चीज़ खाया है पॉइजन, जब तक आपको यह कंफर्म ना हो कि उसने क्या खाया है तब तक जो उसको उल्टी कराने नहीं लगाना। एक चीज़ ये मशहूर है कि जो है अगर कोई चीज़ खाया है पॉइजन तो फौरन पेशेंट को क्या करने लगा, उल्टी करने लगाओ तो पॉइजन निकल जाएगा। वैसे बात तो ये सही है कि कह के जरिए से जो है पॉइजन निकल जाता है, लेकिन जब तक आपको कंफर्म नहीं है कि उसने क्या खाया तब तक कह नहीं कराना। रीज़न उसका ये है कि अगर पेशेंट ने कोई ऐसी चीज़ खाया है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ लिया है जो एसिड किस्म की है, ठीक है, तो एसिड क्या करता है आपके जो है जितने जगह से वो जाएगा, ठीक है, पूरे आपके खाने की नली, पेट, इसको जो है पूरा जो है मतलब जो है उसको नुकसान पहुंचाते जाएगा, ठीक है। उसकी जो पूरी लेयर है, एसिड का काम क्या रहता है, एसिड कहीं पे डालो ज़मीन के ऊपर पूरा जो है जला देता, तो इस तरीके से जो है वो पेट के पूरी जो है लाइनिंग को जला देता। अब एक मरतबा उसने अंदर ले ही लिया, अब फिर आप उसको वापस बाहर भी निकालने लगा रहे तो और नुकसान बढ़ जाएगा। जाते टाइम अगर नुकसान न भी किया होगा, अब निकलते टाइम नुकसान कर देगा। तो जब तक आपको ये कंफर्म नहीं है कि उसने क्या चीज़ लिया है तब तक उसको क्या करने नहीं लगाना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर जो है सांस के जरिए से अगर जो है पॉइजन अंदर गया है तो अब क्या करना, उसको सबसे पहले वहाँ से अलग कर दो, ठीक है। जहाँ पे रह करके जो है पॉइजन उसके अंदर गया है उसको वहाँ से लेके आओ, बाहर खुले में लेके आ जाओ, ठीक है। खुले माहौल के अंदर में, खुले ग्राउंड के ऊपर में जो है वहाँ लेके आ जाओ जहाँ उसको कम से कम फ्रेश एयर मिल जाए। तीसरी चीज़, अगर जो है पॉइजन जो है उसके ऊपर कहीं पे फैल गया, ठीक है, उसके ऊपर गिर गया था और जो है उसकी स्किन के ऊपर, कपड़ों के ऊपर आया है तो फौरन जो है कपड़े निकाल देना, ठीक है। नहीं तो जो है कपड़ों के जरिए से वो स्किन के ऊपर जाएगा और वहाँ से जो है वापस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो इसलिए क्या करना, जो है उसके कपड़े वगैरह सब निकाल देना, ठीक है। कपड़े उसके निकाल दो, स्किन पे अगर लगा है तो उसको धो दो, ठीक है, पानी से जो है उसके ऊपर से स्किन को धो दो, ठीक है। और अगर आंखों में गया है तो आंखों के लिए वही इलाज है, पानी जो है पानी के छींटे मारना आंखों के ऊपर, 10-15 मरतबा जो है बहुत जोर जोर से पानी के छींटे आंखों के ऊपर मारना, ठीक है। ये बेसिक फर्स्ट एड है। इससे क्या होगा, इससे गया हुआ पॉइजन तो बाहर कुछ दर्जे में वो भी निकल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप आगे के लिए तो रोक देंगे, ठीक है। आगे जो एब्जॉर्ब होने वाला है, जो चीज़ अंदर खून में मिल चुका है उसको तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन बकिया जाने से जो है आप रोक सकते हैं। जो जिस्म के ऊपर अगर आपने धो दिए तो इंशाल्लाह वो अंदर नहीं जाएगा, जो कपड़े के ऊपर लगा था कपड़े निकाल दिए तो इंशाल्लाह वो अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप कम से कम जो है आगे जो चीज़ बढ़ने वाली थी उसको तो कम से कम रोक सकते। बाकी जो हो गया है उसका ये तो आगे इलाज करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना ही है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है फौरी तौर पे कम से कम इतनी चीज़ें कर सकते। एनिमल बाइट, ठीक है, इसमें मैंने स्नेक बाइट नहीं लिया, स्नेक बाइट अलग से लूँगा इंशाल्लाह। एनिमल बाइट ये नॉर्मली कुत्ते काटने का ये जो है थोड़ा कॉमन रहता है, कहीं पर भी आदमी जा रहा रोड पर से, आमतौर से कुत्ते, लेकिन कब काटते हैं, जब उनको जो है कुछ उनके साथ में कुछ छेड़खानी की जाए, ठीक है। ये मतलब हम लोगों ने यही पढ़े, अगर कुत्ता खुद से सामने से आके काट रहा है तो थोड़ा मसला खतरनाक है, मतलब ये कि वो कुत्ता पहले से पागल है, वरना आमतौर से कोई कुत्ता खुद से आके काटता नहीं है, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ एक लगता पहले प्रोवोक करना पड़ता तब वो आके काटता। बहरहाल तो इसमें क्या करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुत्ता काटने के बाद में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है जहाँ पे जो है कुत्ते ने काटा है वो हिस्से को जो है धो देना, अच्छे से धोना, 10-15 मिनट तक उसको पानी के नीचे रखो, लगे तो साबुन लगा के उसको अच्छे से धो दो। ये लिखा हुआ है कि जो है इतना ही करने से जो है आप अच्छे खासे पॉइजन को अंदर जाने से रोक सकते, ठीक है। क्योंकि कुत्ता काटने के बाद में जो बीमारी होती है रेबीज, ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, ठीक है, इसका इलाज नहीं है। इसके लिए वैक्सीन तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन इसका इलाज नहीं है कोई। एक बार किसी को अगर रेबीज हो गया, रेबीज में आदमी पागल हो जाता, ठीक है, बिल्कुल जैसा कुत्ता पागल होता है वैसे इंसान भी पागल हो जाता, ठीक है। और यहाँ तक कि जो है वो पानी के सामने आने से उसको ऐसी हैबत होती है कि जो है वो उसकी सांस की नली भी ब्लॉक हो जाती है पानी को देखने से, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं,
पानी का डर, ऐसा डर बैठता कि जो है वो पानी के सामने आने से पेशेंट बिल्कुल जो उसकी सांस की नली ब्लॉक हो जाती, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता, बहुत कुछ होता। ठीक है, तो रेबीज इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसको जो है इसके प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको होने से रोका जा सकता है ना। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये करना कि जो है अच्छे से जो है पानी के नीचे उसको साबुन के साथ जो है 10-15 मिनट तक अच्छे से धो देना। कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके बारे में एक चीज़ ये लिखिए कि ये वाले घाव को जो है कवर नहीं करना, इसको जो है कवर नहीं करना। इसको अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा घाव लगा है तो उसको टाके भी नहीं मारना। ठीक है, टाके भी उसको, वैसे तो डॉक्टर्स रहेंगे उनको पता ही रहेगा कि जो उसको टाके नहीं मारना, और फौरन जो है जाके दिखाना। ठीक है, इतना नहीं कि ये हो गया तो अब खत्म हो गया, इसको जाके दिखाना, और फिर जो भी इंजेक्शन का कोर्स बताएंगे आपके घाव के हिसाब से कितना गहरा है, उसके हिसाब से जो है फिर इंजेक्शन का कोर्स पूरा करना, अपनी जिम्मेदारी से उसको पूरा करना। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्नेक बाइट, सांप के काटने पे क्या करना। सांप के काटने के ऊपर सबसे पहली चीज़ जो शायद इसमें भी नहीं लिखी है वो ये कि जो है शांत रहना। ठीक है, क्योंकि सांप की जो अक्सर किस्में हैं, ठीक है, वो जो है जहरीले नहीं रहते, बहुत कम किस्में जो है सांप की वो जहरीले होते हैं। ठीक है, अब वो पहचानना थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल है, उसके भी कुछ फीचर्स रहते हैं, लेकिन इतने से देर में वो नहीं बता सकते कौन सा सांप जहरीला है कौन सा नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि भाई अक्सर तो जहरीले नहीं रहते। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले शांत रहना। शांत रहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आदमी घबराता है तो घबराने की वजह से ऑटोमेटिक आदमी के जिस्म के अंदर में खून की गर्दिश बढ़ती है। तो अगर सांप जहरीला होगा भी तो क्या होगा कि खून की गर्दिश बढ़ने से वो जहर जल्दी फैल जाएगा घबराने से। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, पहले तो जो है शांत रहना। फिर ये कुछ चीज़ें पहले ये देखिए जो नहीं करना है, क्योंकि आमतौर से यही होता है सांप के मामले में जो है बहुत चीज़ें चलती है। ठीक है, हाँ, किसी के पास ले जाते हैं, कोई पुराना रहता भाई, हाँ ये सांप के काटने का इलाज करता, या फिर दूसरा ये कि जो है वहाँ से जो है बोले ये जहर को चूस करके निकाल लेगा। ठीक है, वुंड को कट करना ये तो इतना नहीं चलता। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जो है सांप ने काटा तो फौरन जो है वहाँ पे कोई टाइट जो है पट्टी बांध देते। ठीक है, ये नहीं करना। ठीक है, पट्टी बांधने की जो लॉजिक थी वो अलग थी साइंस के अंदर में, लिम्फेटिक फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन वो सब इतनी टाइट पट्टी बांधना कि जिससे खून का जो है बहना बंद हो जाए। ठीक है, ये तो और नुकसानदेह है, इसलिए जो है लाइगेचर जो है ऐसा पट्टी जो है नहीं बांधना, बल्कि क्या करना, जहाँ पे जो है सांप ने काटा है, मिसाल के तौर पे ये हाथ है, ठीक है, तो उसके ऊपर की जॉइंट, उसके नीचे की जॉइंट, इसको जो है ऐसा सपोर्ट कर दो कि ये जो है ज़्यादा हरकत ना करे। ठीक है, इसके नीचे जैसे यहाँ पे दिया है ऐसी कोई पट्टी लगा दो, यहाँ पे जो है सांप ने काटा है, ऐसी पट्टी लगा दो कि जो है ये हिस्सा जो है वो हरकत ना करे। ठीक है, उसके नीचे पट्टी लगा दो और हल्की से ऊपर से बांध दो। ठीक है, हल्का सा बांधना, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना। और बेसिक फर्स्ट एड वही है, काटने के ऊपर उसको जो है पानी साबुन से अच्छे से धो के फिर जो है वहाँ पे से डॉक्टर के पास में लेके जाना। हाँ, ये एक चीज़ है, ये अगर हो जाए तो क्या करना। ठीक है, हम जब MBBS कर रहे थे तो हमको मदरसे से खास इसके लिए कॉल आया था कि जो है एक बच्चे को जो है फिट, जिसको हम कहते हैं, झटके आते हैं ना फिट, तो वो अगर आ जाए तो क्या करना, जिसमें जो है पेशेंट जो है हाथ पाँव को जो है ऐसा ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, खुद के नहीं बेइख्तियारी होता वो, तो वैसे में क्या करना। ठीक है, देखो अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा यहाँ खड़ा है या कोई भी आदमी खड़ा है, उसको जो है यहाँ पे फिट आने लगे, तो हमको एक काम ये करना है कि भाई उसको यहाँ पे फिट आ रहा हो, यहाँ कहीं गिरेगा तो उसको लग जाएगा, गिरेगा तो लग जाएगा, तो उसको जो है ऐसी जगह पे ले जाओ जिसमें आसपास में कोई चीज़ ना हो, यानी कोई अच्छी सेफ जगह पे लेके चले जाओ। ठीक है, यहाँ से अलग कर दो, कोई सेफ जगह पे लेके चले जाओ, और जितनी हरकत कर रहा है करने दो, उसको रोकने की कोशिश मत करो। हरकत जो कर रहा है करने दो, उसको रोकने की कोशिश नहीं करना। बस ये देखो कि उसको आजू बाजू की कोई चीज़ से जो है उसको तकलीफ नहीं पहुँचना। कोई जो है आग के पास है, कोई लिफ्ट के पास है, वो जो सीढ़ियाँ चलती है मॉल में, कोई उसके पास है, उसको वहाँ से खाली अलग कर दो बस। और फिर जब उसके जो है पूरी जब फिट खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद में उसको ये वाली पोजीशन दे देना। ठीक है, ये पोजीशन कौन सी है, पेशेंट को एक करवट पे जो है लेटा देना। ठीक है, और एक हाथ को जो है उसके गाल के नीचे रख देना, आमतौर से उल्टा करते, यानी उल्टे हाथ को सीधे गाल के नीचे, और एक पैर को जो है थोड़ा सा फोल्ड कर देना, एक पैर को सीधा रखना। ये पोजीशन देने से होगा ये कि जो है पेशेंट के मुंह की जो चीज़ें हैं वो उसके सांस की नली में नहीं जाएगी, तो उसका जो मुंह है वो पूरा क्लियर रहेगा, तो पेशेंट सांस इजीली ले पाएगा। बस इतना करना है, और जो है वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। अगर 2 मिनट से ज़्यादा जो है बेहोश रहता है तो थोड़ा ये मतलब ऐसी चीज़ है कि फिर उसको देखना पड़ेगा, उसको आगे इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करना, और जो है एम्बुलेंस के आने का वेट करना। आमतौर से बस पेशेंट ऐसे ही बेहोश होते हैं, इनमें नफ्स वगैरह चलते रहती है। अगर खुदा ना खास्ता नफ्स चली जाए तो फिर वापस वही चीज़ होंगी,
CPR शुरू करना पड़ेगा, बाकी और कोई चीज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखो, हाँ वो नहीं करना है, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, जूता वगैरह सुंघाना। ये देखो, ये है ना, पेशेंट अगर जब ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर हिला रहा है, अगर आपने उसको रोकने की कोशिश की है तो हाथ पैर हिलाने से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन आपने बहुत ज़ोर से उसको टाइटली रोकने की कोशिश की तो उसको जो है हड्डी टूट सकती, ठीक है। तो आप हेल्प करने के बजाय जो है उसका जो है ऑलरेडी उसको अब फिट क्यों आ रहा है वो भी देखने के लिए एडमिट करना ही था, साथ में बोले भाई फ्रैक्चर का भी इलाज करा के आ तू, ठीक है। हाँ, और वैसे टाइम पे मुंह में कोई चीज़ नहीं डालना, ठीक है। ये पोजीशन है, इसको कहते हैं रिकवरी पोजीशन, ठीक है। फिट आने के बाद बल्कि पेशेंट जब भी बेहोश हो जाए तो ये वाली पोजीशन में जो है पेशेंट को डाल देना, जिससे पेशेंट का जो है एयरवे, जो सांस की नली है वो जो है पूरी खुली हुई रहती, उसमें कोई चीज़ जाती नहीं। ये बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है, पेशेंट को जो है शुगर कम हो गया, ठीक है। पेशेंट को शुगर कम हो गया कैसे पता चलेगा? मैंने एक तो ये बताया कि आमतौर से ये डायबिटीज़ के पेशेंट में होता, जो शुगर की गोलियां लेते उनमें जो है शुगर कम होता आमतौर से। पेशेंट को जो है चक्कर आएगी, थोड़े से पहले जो है सर हल्का हल्का लगेगा, ऐसा मतलब ऐसा सर घूमेगा, है ना, और फिर जो है पेशेंट को एकदम से धड़कनें बढ़ जाएगी, पसीना छूटेगा। ये पेशेंट खुद भी पता कर सकता, जिसको है शुगर उसने ये पता मालूम रखना कि भाई ये चीज़ें, ये एक इंडिकेशन है कि मेरा शुगर कम हो रहा है, तो फ़ौरन अपने जेब में कोई मीठी चीज़ रखना, निकाल के खा लेना। अपने सामने किसी को ऐसा कुछ हुआ तो फ़ौरन उसको जो है कोई मीठी चीज़ दे देना। इसलिए एक चीज़ पहले से चलती थी अपने घरों के अंदर, किसी को ऐसा जो है चक्कर वगैरह आए तो फ़ौरन शक्कर और नमक का पानी देते थे, है ना। शक्कर नमक का पानी देने का लॉजिक ये थी कि शक्कर से अगर शुगर कम हुई है तो शक्कर से शुगर बढ़ जाएगी, और अगर बीपी कम हुआ है तो नमक से बीपी बढ़ जाएगा। अच्छी चीज़ है ये, कोई बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है ना। मतलब अभी यही दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से चक्कर आती, तो फ़ौरन उसको ये चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। अब पता है कि भाई कोई तालिब इल्म है, 2-3 दिन से खाना बराबर नहीं खा रहा, या फिर वो शुगर का मरीज़ है, उसको ऐसा कुछ हुआ तो फ़ौरन जो है अपने जेब में कोई बिस्किट रखे, ग्लूकोज वगैरह उसको दे दिए। चेस्ट पेन, ठीक है, पता कैसे करना कि भाई इसको जो सीने में जो दर्द हो रहा है ये सही में हार्ट की वजह से है ना, दिल की तकलीफ की वजह से, कैसे पता करना, ठीक है। ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन एक ऊपर से बता देते, जो दिल का जो दर्द रहता है, ठीक है, हार्ट का, वो आम तौर से बीच में या थोड़ा सा लेफ्ट बाजू यहाँ पर होता, और बहुत बहुत सीवियर रहता, यानी ऐसा दर्द रहता कि पेशेंट को लगेगा कोई मेरे ऊपर बैठ गया, ठीक है, या कोई जो है बहुत ज़ोर से मुझे दबा रहा है, इस तरह के का पेन रहता। कभी कभार जो है उल्टे हाथ की तरफ भी जाता, कभी कभार जो है चेहरे के उल्टे साइड की तरफ भी जाता, ठीक है। और जो है कोई भी काम करने पे, चलने पे वो दर्द बढ़ता, और थोड़ा सा आराम कर लो तो वो पेन जो है वो कम हो जाता। ये टिपिकल फीचर रहता है दिल के दर्द का, कार्डियक चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं। अगर किसी को ऐसे फीचर आ रहे हैं तो उसने जो है जाकर के डॉक्टर को दिखा लेना, ये चीज़ पता रहना कि दिल का दर्द कैसा रहता। बाकी किसी को बहुत टाइम से सीने में तकलीफ है, वो हाई शुगर और बीपी का मरीज़ भी है, तो उसने तो जाके दिखा ही लेना चाहिए। लेकिन कभी इमरजेंसी में पता करने के लिए कि भाई ये दिल का दर्द हो सकता कि नहीं, उसके लिए ये चीज़ें। हाँ, और उसमें एक और चीज़ ये है कि अपने पास में अगर डिस्प्रिन की गोली रखे, ठीक है, डिस्प्रिन 325 की आती है, जैसे पानी में डालो तो ऐसा घुल भी जाती है वो, ठीक है, तो वो जो है पानी में घोल करके उसको पी सकते हैं। अगर किसी को ऐसा दर्द हो रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ ये मेरा दिल का दर्द है, ऐसा बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लग रहा है अंदर से, तो जो है डिस्प्रिन घोल करके पी सकते हैं, या एस्प्रिन की जो गोली मिलती है उसको चबा करके खा सकते हैं, ठीक है। चबा के इसलिए खाते हैं कि उसका एक्शन जल्दी होता। बाकी ये उसमें बहुत आगे की चीज़ हो जाएगी वो। स्ट्रोक कैसे पता करना? कोई भी पेशेंट अगर ये बोल रहा है, या कोई भी आदमी ये बोल रहा है कि एकदम से जो है मेरा एक हाथ पैर कमज़ोर पड़ गया, या एक हाथ पैर में जो है मूंगें आने लग गई एकदम से, या फिर जो है उसके चेहरा जो है वो एक तरफ हो गया, उसका मुंह एक तरफ हो गया, तो ये साइन रहता है कि पेशेंट को स्ट्रोक आया है, पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो फ़ौरन जो है उसको लेके चले जाना चाहिए, उसमें देर नहीं करना। आमतौर से पैरालिसिस जो बड़े लोगों में आता है, बुज़ुर्गों में, वो इस तरह से आता है कि रात में सोए तो अच्छे भले रहते, सुबह में आमतौर से फजर की नमाज़ के लिए उठे, बैतुल खला गए तो बोले हल्की हल्की कमज़ोरी लग रही, और फिर फजर के बाद बोले थोड़ा सा आराम कर लेते, अच्छे हो जाएंगे। जब वापस सो करके उठते तो देखते तो पूरा एक तरफ पैरालिसिस हो गया रहता है। ये जो सुबह का टाइम रहता है वो टाइम पे उनको आता हुआ रहता है, तो वो महसूस नहीं होता, वो बस समझते कि भाई हल्की हल्की कमज़ोरी है, कुछ नहीं, थोड़ा आराम करेंगे तो हो जाएगा। फिर जब वापस 1-2 घंटे बाद उठते तब तक पूरा एक साइड पैरालिसिस हो गया रहता है ना। इसलिए एकदम से आने वाली कमज़ोरी है ना, इसको जो है नज़रअंदाज नहीं करना। ऐसा अगर कोई रहा, खास करके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है जिसको शुगर बीपी भी है, तो फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास लेके चले जाना। हीट स्ट्रोक अगर किसी को बैठ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, अगर जो है पेशेंट को है ना बहुत ज़्यादा एकदम गर्म हो गया, तो उसका इलाज जो है वो पैरासीटामोल नहीं है, जो आम बुखारों का इलाज है वो उसका इलाज नहीं है, बल्कि उसमें क्या करना, पेशेंट को जो है ठंडे माहौल में ले जाना। उसको जो है सबसे बेस्ट ये है कि
कपड़ा लेना और ठंडे पानी में भिगो करके उसको पूरे बॉडी पे से 3-4 बार जो है अच्छे से फेर देना, ठीक है, जिसको वेट स्पॉन्जिंग बोलते हैं। कपड़ा गीला करके पूरे बदन के ऊपर से जो है फेर करके निकालना, इससे जो है बॉडी का टेम्परेचर इंशाल्लाह धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे अहम चीज़ CPR का डेमोन्स्ट्रेशन, उसको कर दो। तो अब देखिए CPR कब देना रहता, वो इंतजाम करते तब तक। हमारे सामने कोई भी आदमी कहीं पर भी बेहोश होकर गिर गया, ठीक है, हम कहीं पर थे, बाहर मार्केट में थे, ठीक है, वो रोड के ऊपर में एक आदमी जो है बेहोश होकर गिर गया। अब करना क्या है वहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो जो है उस आदमी को वहाँ से हटा करके किसी सेफ जगह पे ले जाना। रोड के बीच में गिरा है, वहाँ पे गाड़ी आने जाने वाली रहेगी, ठीक है, तो उसको जो है एक तरफ साइड में कर दिए। अब साइड में करने के बाद में जो है दूसरी चीज़ जो है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये करना है कि जो है ज़ोर से उसको उठाने की कोशिश करना, ठीक है, उसके जो है, हाँ, इस तरह से जो है कहीं पर भी उसको, अभी जाहिर सी बात है रोड पे कहीं पर भी हुआ तो हमको पता नहीं रहेगा कौन है, उसका नाम मालूम नहीं रहेगा, तो भाई ज़ोर से जो है उसके ऊपर, हाँ, 2-3 मरतबा ऐसा जो है उसको टैप करना है, उसके कंधे के ऊपर उसको ऐसा हल्का सा मार के जगाने की कोशिश करना है। नहीं हो रहा है तो अब तीसरी चीज़ जो है उसकी पल्स चेक करना है, नब्ज चेक करना है। और कहाँ चेक करेंगे, ये गले के पास वाली, जिसको कैरोटिड बोलते हैं, हाँ, उस तरफ से करो तो दिखेगा उनको, ये साइड वाली, ये साइड वाली, ठीक है, हाँ, ये जगह पे जो है चेक करेंगे कि जो है नफ्स चालू है कि नहीं, ठीक है। अगर चल रही है तो फिर देखो वो सांस ले रहा है कि नहीं, और फिर बाद में जो है डॉक्टर को बुलाओ, और फिर जो हमको बताए थे कि भाई बेहोश हो गया तो उसके पैर ऊपर कर दो। अब अगर नफ्स नहीं चल रही है तो अब क्या करना है, अब हमको CPR शुरू करना है, लेकिन अब हम अकेले हैं, ठीक है। हम कितनी देर तक CPR दे सकते हैं, CPR ऐसी है कि इसमें जो है बहुत एनर्जी लगती, ठीक है, देखने के लिए करने के लिए है बहुत सिंपल चीज़, लेकिन उसमें ताकत बहुत लगती, हम अकेले जो है उतने देर तक नहीं कर पाएंगे एम्बुलेंस के आने तक। इसलिए क्या करना, सबसे पहले जो है आसपास में 2-3 लोगों को बोलना कि जो है एक जन एम्बुलेंस को कॉल करो और लोगों को बुलाओ, और जो है अगर वहाँ पे AED, ठीक है, ये तो अपने यहाँ पे नहीं रहता तो ये चीज़ छोड़ दो, AED जो है ये ऑटोमेटेड मशीन रहती है जो शॉक देती है, तो बाहर के मुल्कों में जो है ये हर जगह पे लगी हुई रहती है, मार्केटों में, मॉल में, हर जगह पे, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे। अपने यहाँ पे वो वैसा वो चीज़ है नहीं, हम वैसे लेके आए AED दिखाने को आपको, ठीक है। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले तो जो पेशेंट बेहोश हुआ है उसको एक तरफ साइड में लेके आना, उसको जगाने की कोशिश करना, नहीं हो रहा तो जो है उसके नफ्स चेक करना, नफ्स नहीं चल रही है आसपास में लोगों को बोलना जल्दी से जो है लोगों को जमा करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, और फिर जो है हम जो है खुद CPR देना शुरू कर देना। अब CPR कैसे देना है, सबसे पहले जो है पेशेंट जहाँ पे है उसके बाजू में आके बैठ जाना, ये सबसे अच्छी पोजीशन रहती है, इसमें आप सबसे अच्छे से जो है CPR दे पाएंगे। तो जैसे पेशेंट अगर नीचे है तो नीचे उसके बाजू में आके बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ऐसा उसके बाजू में, ठीक है, और फिर एक हाथ, ठीक है, इसको सीधा जो है पेशेंट के जो है जहाँ पे छाती खत्म होती है, ठीक है, ये जो बीच की जो हड्डी है स्टर्नम, ये जहाँ खत्म होती है एकदम नीचे का हिस्सा, वहाँ पे रखना, ठीक है, और दूसरा हाथ उसको जो है उसकी उंगलियों के बीच में ऐसे डाल देना, ठीक है, एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल देना, और फिर उसके बाद में ये जो कोनी है इसको एकदम बिल्कुल सीधी रखना, ठीक है, और ये आपके कमर के ऊपर से अब पूरा जो है प्रेशर देना पेशेंट के सीने के ऊपर, और जो है उससे दबाना शुरू करना। कितना दबाना, ठीक है, इतना भी नहीं दबाना कि जो है यहाँ से जो है नीचे तक पूरा चलेगा, नीचे की ज़मीन तक, ठीक है, कितना दबाना है, इतना दबाना कि जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर पेशेंट की छाती अंदर जाए, ठीक है। मकसद क्या है दबाने से, कि जो है हार्ट के अंदर का जो ब्लड है वो बाहर निकले और ब्रेन को पहुंचे। शुरू हमने कहाँ से किए थे कि अगर ब्रेन को जो है ब्लड नहीं पहुंचा तो ब्रेन जो है 2 मिनट के अंदर में उसको नुकसान होना शुरू हो जाता, 5 मिनट में जो है खत्म हो जाता। तो ब्रेन को ब्लड पहुंचाना ये मकसद है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, इतना दबाना कि कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है वो छाती अंदर जाए, और फिर उसके बाद में वापस बाहर आए, फिर अंदर जाए, फिर बाहर आए, ये चीज़ करना है। और कितनी मरतबा करना है, इतने फास्ट करना है कि कम से कम 1 मिनट में आप 100 से 120 बार जो है ये दे पाए, इतना फास्ट करना है। इसलिए आपको बोला कि इसमें ताकत बहुत लगती है, 2 मिनट से ज़्यादा एक आदमी नहीं कर सकता, उसको चेंज करना पड़ता, इसलिए और लोग तब तक तैयार हो जाना, ठीक है। इसलिए शुरू करने से पहले ही बुला लेना लोगों को, ठीक है। करो, शुरू कीजिए। ये करते के वक्त जो है आमतौर से पहले ये था कि गिनते भी थे साथ में 1 2 3 4, क्योंकि एक पहले ये सिस्टम चलता था कि 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में, यानी 30 मरतबा छाती प्रेस करने के बाद 2 मरतबा सांस देते थे, यानी पेशेंट को जो है हवा देते थे। लेकिन अभी ये बोला जाता है कि हवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी के ब्लड के अंदर में इतना ऑक्सीजन है कि वो 5 मिनट सर्वाइव कर सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड की गर्दिश है, तो इसलिए वो एक्चुअली वो सांस देना, किसी को मुंह से मुंह में सांस देना ये आता भी नहीं है, किसी को अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है।
तो वो चीज़ अभी हटा दिए है प्रोटोकॉल से। अब इतना है कि बस आप सिर्फ जो है कॉम्प्रेशन देते जाना, बस छाती दबाते जाना, एम्बुलेंस आने तक, डॉक्टर आने तक, या जो है पेशेंट के वापस खुद से हार्ट के शुरू होने तक। तो क्या करना है, अभी कंटिन्यू 2 मिनट तक जो है इस तरह से देते रहना है। 2 मिनट के बाद में क्या करेंगे, वापस से जो है अब पल्स चेक करेंगे, नफ्स चेक करेंगे, आए क्या। अगर आ गया मतलब जो है सर्कुलेशन शुरू हो गया, तो आप रुक सकते। अब रिकवरी पोजीशन दे दो उसको, जो रिकवरी पोजीशन पड़े थे ना, पेशेंट को एक तरफ लेटा करके वो पोजीशन दे दो। नहीं आया है तो अब फौरन जो है ये थक गया, दूसरा आके अब वो देना चालू करे। अब 2 मिनट तक जो है वो कॉम्प्रेशन देगा, फिर 2 मिनट के बाद में फिर चेक करेंगे। ये चीज़ चलते रहेगी। कब तक चलने देना है, 3 चीज़ों में से एक होने तक। क्या क्या, या तो एम्बुलेंस या डॉक्टर आ जाए, ठीक है, दूसरा पेशेंट खुद से जो उसकी नफ्स शुरू हो जाए, तीसरा यह है कि आपकी पूरी कोशिश के बाद में भी पेशेंट की नफ्स शुरू नहीं हो रही है, जिसका मिनिमम टाइम है 30 से 45 मिनट। 30 से 45 मिनट तक कंटिन्यू दिए और नफ्स नहीं शुरू हो रही है तो अब फिर छोड़ देना कि भाई। तो अब इसको कैसा करेंगे, चलो एक मरतबा दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ लोग आके यहाँ करेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखने से तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब खुद आके करेंगे तो आदमी को एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई कैसी चीज़ है, सही में मालूम पड़ेगा कितना ईजी कितना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हिम्मत की बात है, वहाँ करने के लिए हिम्मत चाहिए, है ना। हम सोचेंगे भाई करना कि नहीं करना, लोग क्या बोलेंगे। जैसे आमतौर से हमको पता है, हमको आता है, लेकिन देना कि नहीं देना। लुकमा कैसा होता है नमाज में, हम पता है 3 रकात हुई, लेकिन दूसरे तो नहीं बोल रहे, हम क्यों बोलना, ठीक है। तो सबसे पहले कहीं पर भी हमारे सामने कोई ऐसा हादसा हुआ, कोई गिर गया, क्या करना, सबसे पहले उसको वहां से हटाना, ठीक है। रोड पे है तो वहां से हटाना, आग के पास है वहां से हटाना, सेफ जगह पे लेके आना। दूसरा देखना कि जो है वो जागता है कि नहीं, उसको जो है जगाने की कोशिश करना, अरे भाई साहब उठो, ठीक है, नहीं हो रहा, अब जो है नफ्स चेक करना। चल रही है तो कोई बात नहीं, फिर आगे का प्रोसीजर करना। नहीं है तो अब फौरन जो है लोगों को बोलना, एक को ऑर्डर देना, तुम जो है एम्बुलेंस को बुलाओ। ऐसा हवा में नहीं बोलना कि भाई बुलाओ कोई एम्बुलेंस को, अपने यहाँ ऐसा होगा कि भाई वो उसको देखेगा, वो उसको देखेगा। तो ऑर्डर देना कि तुम जो है एम्बुलेंस को बुलाओ, तुम जो है जल्दी से इधर आओ, ठीक है। अब जो है उसके बाद में फिर अब जो है छाती को दबाना शुरू करना। कैसे दबाना है, पेशेंट के बाजू में इस तरह से बैठ जाना, हाथों के जो है ये हथेलियों को छाती के जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल ये बीच की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है वो वाले हिस्से पे वहाँ पे रखना। दूसरे हाथ की उंगलियों को जो है उसमें बीच में जो है डालना, और फिर जो है हाँ देते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कोनी स्ट्रेट रहे, नहीं तो आपका पूरा प्रेशर जो है वो कोनियों पे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है कोनी स्ट्रेट रहना और प्रेशर जो है यहाँ से लगना है, देखो यहाँ से मूवमेंट होना, ये पार्ट हिलना, ठीक है। कितना देना, इतना कि जो है 5 सेंटीमीटर कम से कम छाती दबे, और जो है 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 मरतबा जो है पेशेंट को जो है कॉम्प्रेशन देना है, ठीक है। कब तक करना, जब तक जो है कोई एम्बुलेंस या हेल्प नहीं आ जाती या पेशेंट की जो है नफ्स शुरू नहीं हो जाती। हर 2-2 मिनट में चेक करना है, 2 मिनट में चेक करना और फ़ौरन उतने देर में बदल भी लेना, ठीक है। ज़्यादा इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बदलने के अंदर में भी 10 सेकंड के अंदर अंदर ये काम होना, ठीक है। नफ्स चेक करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 10 सेकंड के अंदर में जो है चेक करना, ठीक है, क्योंकि एक एक सेकंड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब तक कोई डॉक्टर नहीं आ जाता, जब तक पेशेंट खुद से जो है शुरू नहीं कर देता, उसकी नफ्स खुद से शुरू नहीं हो जाती, या फिर कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट ना हो जाते, ठीक है इंशाल्लाह। तो अब कौन आके यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेगा?
जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन पेश किया इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें जो जैसे खून निकलता है तो हमको ये नहीं मालूम था कि भाई ऊपर हाथ, ऊपर पाँव करना चाहिए सीने से ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई और प्रैक्टिकली तौर पर ये कर कर बताए ताकि आदमी को कभी हो तो एक तो आदमी देखता है और एक अब आखिर में एक 5-7 मिनट के छोटी सी क्लिप है, कल मुझे किसी साहब ने भेजी, चहलकदमी के ऊपर। हम लोग चलते फिरते नहीं, बैठने का काम ज़्यादा करते हैं। तो बहुत अच्छा एक साहब ने दाढ़ी टोपी वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया है कि हमें चलना चाहिए। तो आप सब जमा हुए हैं, हाँ, बार बार जमा नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा कि सब हजरात के सामने वो छोटी सी क्लिप आ जानी चाहिए। तो आप 5 मिनट और दें और उसको सुनने की कोशिश करें, बहुत मुफीद चीज़ है इंशाअल्लाह। शुरू करें। लिकाउल्लाह है, वहीं से इन्होंने MBBS किया और MD भी किया और माशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। और मुझे याद है कि माशाल्लाह इनको दीनी तालीम सीखने का भी बड़ा शौक़ है और काफ़ी आपने हासिल कहाँ तक के पढ़े? अच्छा, तो आप हजरात 5-7 मिनट देकर ये जो वीडियो बताई जा रही है उसको ज़रूर देखिए, इसलिए कि हम लोग चलना फिरना बिल्कुल नहीं करते। वर्जिश नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन चलना ज़रूर चाहिए। तो इसको ज़रूर हमारे असातिज़ा सुनने की कोशिश करें, ख़ुद भी चले कि भाई इतना तो कम अज़ कम रोज़ाना आदमी को चलना ही चाहिए। बहुत अच्छा बता रहे। जी हाँ, असातिज़ा को बताया है कि भाई हम लोग चलना फिरना शुरू करें, खाली बैठे बैठे लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, चलते रहना चाहिए आदमी को। और इन्होंने बताया कि भाई मस्जिद में कम से कम जाए आदमी। अब 25-50 कदम की मस्जिद है, उस पर भी स्कूटर पर जा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए कोशिश करें, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो बजाय स्कूटर लेकर आने के पैदल आने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मैं मशकूर और ममनून हूँ हमारे डॉक्टर सोहेल साहब और बदनापुर से आई हुई पूरी टीम का कि उन्होंने बहुत दिलचस्प अंदाज में फ़र्स्ट एड का ये प्रोग्राम हमारे सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो भी आदमी मुसीबत में हो उस मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करने में जितना भी हो सके अपने से रोल अदा करने की कोशिश करने की तौफीक मरहमत फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।